Hi guys, hello and welcome to my channel Planet Bio, in which we discuss topics for plus 2 science students and NEET aspirants. Today I am going to discuss the characteristic features and examples of class AVs, which includes birds of different kinds. Class AVs. AVs. Pronunciation is very important. Class AVs, not aves. How can we identify this class? It includes birds, and birds may be flightless and flying, both. The study of birds is called ornithology. And a great scientist related to this field was Dr. Salim Ali. Dr. Salim Ali was the great ornithologist of India. Great ornithologist of India, or we can say the birdman of India. The birdman of India. He contributed a lot in this field. So study of birds is called ornithology, and Dr. Salim Ali is a great ornithologist of India, the birdman of India. Now, study of birds' nest. Birds make nest. That is called nidology. Nidology. If C comes there, C and IDO means study of nidaria. Here bird's nest, nidology. Different kinds are there. Nesting property. These are the behaviors. Nesting, brooding, perching, migratory. These are the behaviors shown by birds. So you must note down study of birds' nests, nidology. A study of birds' eggs, oology. Different types of eggs you can see. Different shape and size. Different colors as well. And a study of birds' migration. Migration from one place to another. There is a champion migratory bird, Arctic tern, travels 40,000 kilometers in a year. Migration is called phenology. So these are behavioral or ethological aspects of birds. Nesting behavior, egg laying behavior, migratory behavior, perching behavior, ब्रूडिंग बिहेवियर, इस तरह से बहुत सारे बिहेवियर आप देखेंगे. Now we have to discuss different body systems of birds. First one, skeleton, exoskeleton. Exoskeleton. Its outer covering is made up of skin and its modified structure, feathers. Feathers. Its skin or integument has a particular gland-like structure or glandular structure, you can say uropygial gland. Uropygial gland. Or you can say preen glands. Or you can say caudal glands. Or you can say coccygeal glands. कितने नाम है देख लीजिए. Coccygeal glands.
Uropygial glands, spleen glands, caudal glands, coccygeal glands. This is present in tail. Present in tail region. Tail region and secrete oily substance. Oily substance. For what? For feather dressing. Feather dressing. तो इस तरह से अरेंज करते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड, स्प्लीन ग्लैंड्स, कॉडल ग्लैंड. ग्रीन ग्लैंड्स आर excretory structures found in crustaceans, aquatic arthropods. Preen, not green. Caudal, coccygeal, uropygial, ये सब ये स्किन के अंदर एक खास प्रकार का ग्लैंड है और वो एक ही प्रकार का है. हमारी तरह स्वेट ग्लैंड और सीवेसिस ग्लैंड नहीं होते. ये यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड ये टेल रीजन में होते हैं, इसलिए कॉडल या कॉक्सीजियल सीक्रेट करते हैं ऑयली सब्सटेंस फेदर्स को अरेंज करने के लिए, ड्रेस अप करने के लिए. अब ये फेदर्स क्या है? ये स्किन के मॉडिफिकेशन है, स्किन के मॉडिफिकेशन है. और ये फेदर्स के जो अरेंजमेंट होते हैं ना, इसके अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं प्लमेज. प्लमेज कैसा है? इसका मतलब बर्ड्स का फेदर्स का अरेंजमेंट कैसा है. अब फेदर्स भी कई तरह के होते हैं. क्विल फेदर्स फ्लाइट के लिए, डाउन फेदर्स जो छोटे छोटे बर्ड्स में होते हैं इंसुलेशन के लिए, फिलोप्लूम्स होते हैं छोटे छोटे सपोर्टिंग. तो आपको नहीं जाना है. फेदर्स के अरेंजमेंट को हम प्लमेज कहते हैं और इसका कंपोजिशन खाली देख लीजिए कि ये किससे बना होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा कैरोटीन. ये प्रोटीन है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है बीटा कैरोटीन. बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा. अरेंजमेंट ये किस बात के लिए? फॉर इंसुलेशन एंड फ्लाइट. ये बॉडी को इंसुलेट करता है ताकि अंदर की एनर्जी बाहर न जाए और फ्लाइट में मदद करता है. तो ये भी आप लिख सकते हैं फॉर इंसुलेशन एंड फ्लाइट. काम भी लिख लीजिए. आजकल कुछ लोग फटाफट की दुनिया है, जैसे तैसे आपको कुछ भी समझा देंगे. ये आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसको लेके आगे डॉक्टर बनना है. इतना आसान नहीं होता ये, आते आते आता है. इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, समझना होगा, बहुत सारी चीज़ को त्यागना पड़ेगा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो ये आपको थोड़ा नींद भूख को हराम करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ. चलिए नाउ एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन में इसका स्कल जो होता है एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का बना होता है, मोनोकॉन्डाइलिक. एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. वर्टेब्रल कॉलम का पोजीशन देख लीजिए. वर्टेब्रल कॉलम के कारण इनका बॉडी का शेप अप होता है और आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर इसमें बनती है खास तौर से. तो वर्टेब्रल कॉलम में आप देखिए कि इनके पास नेक है, इसलिए हेड मूवेबल है. अब ये यहाँ नेक से आप देखिए वर्टेब्रल कॉलम में कितने हिस्से हो गए. वर्टिब्री इसमें कैसे हो गए? वर्टिब्री का एक खास स्ट्रक्चर होता है, हेट्रोसिलस हम लोग कहते हैं उसको, वो आगे पढ़ेंगे आप. और इसके अंदर आप देखेंगे कि 5 हिस्से हैं. गर्दन का हिस्सा कौन है? सर्वाइकल. उसके बाद आगे चेस्ट में थोरेसिक, ये हो गया. उसके नीचे कौन है? एब्डोमिनल हिस्सा, लंबर. उसके नीचे कौन है? सैक्रल, ये हिप का एरिया. उसके बाद कॉर्डल या कॉक्सीजियल. इतने वर्टिब्री हैं. अब इसको छोड़ दीजिए. थोरेसिक का कुछ, थोरेसिक का हिस्सा, कुछ कॉर्डल का हिस्सा और लंबर और सैक्रल का पूरा पूरा हिस्सा, सब मिल करके बॉडी का एक पूरा स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप अप करते हैं. और इस पूरे मिलने के बाद एक रचना बनती है, इसका नाम है सिनसैक्रम. कुछ थोरेसिक वर्टिब्री.
पूरा का पूरा लंबर एंड सैक्रम, और लास्ट में कुछ कॉर्डल, ये मिलकर इससे सैक्रम बनाते हैं। पूरा बॉडी को आप देखेंगे इस तरह से ये स्ट्रीम लाइन, इस तरह से एरोडायनेमिक बनाते हैं। लास्ट में जो कॉर्डल का जो एकदम आखिरी हिस्सा है, वो टेल का जो हिस्सा है, टेल का यहाँ पर वो टेल का हिस्सा आखिरी में जो कॉर्डल का हिस्सा है, वो पोस्टेरियर कॉर्डल वर्टेब्री आपस में मिल करके एक ऐसी रचना बनाते हैं जिसको हम टेल कहते हैं, जो डायरेक्शन चेंज करते हैं फ्लाइट के समय। बाकी सब तो एरोडायनेमिक बॉडी बनाते ही हैं, एयर रेसिस्टेंट, हवा के रुख के खिलाफ भी ये मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेल जो है वो काम करता है दिशा परिवर्तन के लिए। तो पोस्टेरियर कॉर्डल वर्टिब्री जो होते हैं लास्ट में, जो ये बनाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पाइगो स्टाइल। ये पाइगो स्टाइल हो गए, ये देख लीजिए। और जो हमारे ये क्लेविकल होते हैं, ये कॉलर बोन्स, ये दो क्लेविकल और उसको मिलाने वाले, दोनों क्लेविकल को मिलाने वाले जो इंटर क्लेविकल हैं, वो सब मिल करके क्या बनाते हैं? ये सब मिल करके बनाते हैं, इसको कहते हैं विश बोन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दो क्लेविकल है, ये दो क्लेविकल है और ये इंटर क्लेविकल है। ऐसे लग रहा है जैसे ये विश कर रहे हैं, इसलिए विश बोन। या इसी को कहते हैं बोन ऑफ मेरी थॉट्स। ये जानना जरूरी है, स्केलेटल से जुड़ा हुआ है। और इसी को लोग कह देते हैं फर्कुला। ये क्वेश्चन आते रहे हैं, समय बदल रहा है, सिलेबस कुछ घटे जरूर हैं, क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं, कभी भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एप्लीकेशन में आता है ये, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से कुछ साल आए हैं क्वेश्चन। इसका ये मतलब नहीं है कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन नहीं आएंगे। तो जान लीजिए, स्कल मोनोकॉन्डाइलिक, एक यहाँ पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिक। वर्टिब्रल कॉलम में देख लीजिए, यहाँ से ऊपर से नीचे तक सर्वाइकल को छोड़ के कुछ थोरेसिक, कुछ कॉर्डल और बीच का लंबर सैक्रल पूरा मिल करके इस तरह से क्या बनाता है? सिनसैक्रम। और आखिर का जो कॉर्डल वर्टिब्री है वो मिल के बनाता है पाइगोस्टाइल। और दो क्लेविकल जो हमारे दो ये कॉलर बोन्स हैं और इंटर क्लेविकल, ये मिल करके ये देख लीजिए इस तरह की रचना बना रहे हैं, वी शेप, विश बोन या बोन ऑफ मेरी थॉट्स या फर्कुला इसको कहते हैं। अब इनके पास से आप देखेंगे इसी एंडोस्केलेटन में ये बात और नजर आएगी कि अच्छा सर ये बताइए, ये सारी बात तो हो रही है, ये भी समझने की बात है कि इनके पास लिम्स 4 हैं, लेकिन 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो लिम्स तो 4 थे, टेट्रापोड में आते थे ये, लेकिन 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम्स तो बदल के विंग्स में। तो अब जो इनका जो चलने की प्रक्रिया होगी वो हाइंड लिम्स के कारण होगी। इसीलिए यदि वो रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इसी हाइंड लिम्स पर, तो हाइंड लिम्स जो है इससे मूवमेंट होगा। इसको कहते हैं हम बाइपीडल लोकोमोशन। ये बाइपीडल लोकोमोशन कहते हैं। पिछले 2 लिम्स से या 2 हाइंड लिम्स से ही चलते हैं, बाइपीडल लोकोमोशन। अब उसके अंदर आप देखिए कि जो ये रिस्ट होता है और यहाँ पर ये पाम, ये मिल करके विंग बोन बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो रिस्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं कार्पल, और जो पाम वाला हिस्सा है, पाम, मेटाकार्पल्स। इनको मिला करके हम कहते हैं इसको कार्पोमेटाकार्पस कहते हैं, यानी इसको विंग बोन बोलते हैं। ये देखिए, ये जो था 2 क्लेविकल, ये 2 क्लेविकल था और एक क्लेविकल, इसको हम विश बोन बोल रहे थे, वी शेप्ड बोन ऑफ मेरी थॉट्स फर्कुला। अब इसको बोल रहे हैं विंग बोन। ये बात है। और इसी सिलसिले में ये भी जानिए कि इनके पास रिब्स है कि नहीं। रिब्स हैं, स्टर्नम भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्टर्नम है, लेकिन ये कील्ड
स्किल्ड का मतलब होता है हमारी तरह फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट नहीं है। इसलिए नहीं है फ्लैट क्योंकि इनको फ्लाइट मसल से जुड़ना है, टू अटैच विथ फ्लाइट मसल्स। ये फ्लाइट मसल से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए फ्लैट नहीं है, इनको उड़ना है, फ्लाइट मसल से के साथ उड़ना है। और रिब्स जो हैं वो डबल हेडेड हैं, 2 हेड हैं। रिब्स जो है डबल हेडेड है यहाँ पर, और बोनी एक्सटेंशन के साथ हैं। उस बोनी एक्सटेंशन का नाम है अनसीनेट प्रोसेस, विथ अनसीनेट प्रोसेस। डबल हेडेड है और विथ अनसीनेट प्रोसेस। ये बोनी एक्सटेंशंस को कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस, और यह मदद करते हैं उनके ब्रीदिंग में, फ्लाइट में और बहुत सारे अन्य काम में। तो ये सब इनके एंडोस्केलेटन की बात है। लेकिन आपके लिए ये बेस्ड ऑन एप्लीकेशन है, सही बात है। लेकिन एक और चीज जानकारी की बात है, वो ये है कि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो होता है बोनी, लेकिन उसमें बोन मैरो नहीं होता। बोन मैरो नहीं होता, मैरो कैनाल होता ही नहीं है। बोन मैरो क्या होता है? सेमी सॉलिड है वो टिश्यू बोन के अंदर, लंबे बोन के अंदर, जिसमें हमारे अंदर क्या बनता था, मैमल्स में क्या बनता था, पहले पढ़े, मैमलिन बोन में होता है बोन मैरो। तो वो बोन जो है वो हार्ड है, सॉलिड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हार्ड एंड रिजिड, आप बोलिए, सॉलिड नहीं बोलिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सेमी सॉलिड टिश्यूज हैं जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ब्लड कॉर्पसल्स को बनाते हैं, प्लाज्मा को नहीं। तो ये बोन मैरो नहीं है, इसलिए ये हल्के हैं, लाइट बॉडी बनाने के लिए, न्यूमेटिक बोन, लाइट। इसलिए आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन जो है बोनी है, और इनके बोन्स जो हैं वो हॉलो हैं, हॉलो हैं, न्यूमेटिक कहते हैं इसको, न्यूमेटिक हैं। मतलब इसमें बोन मैरो नहीं है, बोन मैरो सिर्फ मैमल्स होते हैं, बोन मैरो एब्सेंट। तो ये लाइट वेट के लिए। अब रही बात फ्लाइट मसल्स, तो फ्लाइट मसल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, खाली नाम समझ लीजिए। एक को कहते हैं पेक्टोरलिस, एक को कहते हैं एसेसरी, और एक को कहते हैं टेंसर। अब इसमें जो सबसे बड़ा है पेक्टोरलिस मेजर, यही चीज इसको फ्लाई करने में मदद करता है। इसी के कॉन्सेप्ट पर एरोप्लेन बना है, वही एरोडायनेमिक है, इसको आप समझिए। तो ये फ्लाइट एडेप्टेशन इसी से आता है, ये बोन्स और मसल्स के कॉम्बिनेशन से ये आगे बढ़ते हैं, और फिदर्स उसमें सपोर्ट करते हैं। अब ये स्केलेटन के बारे में आप जान के सबसे बड़ा काम हो गया। अब इसको देख के घबराना नहीं है आपको। अब जो पॉइंट्स बिल्कुल आसान से हैं, और बाकी उससे सिस्टम्स जुड़े हुए हैं जिसको आप समझ सकते हैं। अब ये और भी अच्छा वाला मार्कर लेके आपको स्पष्ट शब्दों में लिख देता हूँ कि अब बात करनी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करना है? डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 बात याद रखिए। पहले के जो बर्ड्स थे उसमें टीथ होते थे, जो अर्ली बर्ड्स थे। अभी जो हैं, जो मॉडर्न बर्ड्स हैं, उसमें टीथ मॉडिफाई कर गए और वो बीक्स हो गए एज पर फीडिंग हैबिट, अलग अलग प्रकार के। तो इसमें आप समझ लीजिए कि इनिशियली टीथ थे, लेकिन बाद में ये टीथलेस हो गए, टूथलेस हो गए, और कह दीजिए कि ये अलग अलग प्रकार के बीक्स में हैं। तो बीक्स आ गया इनके पास। लेकिन ये भी रखिए कि इनके एलिमेंट्री कैनाल में जो गट है उसमें 2 चैम्बर अलग से हैं, जो आपको लगेगा कि इंसेक्ट्स जैसे मिलते जुलते हैं। बाकी तो होंगे, लेकिन ये इसमें आप लिख लीजिए कि क्रॉप भी होते हैं और गिजार्ड भी होते हैं। ये 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये एडिशनल चैम्बर्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स। अब इनके साथ साथ ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल एंड करेगा कुलेका, वही कुलेका जिसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि यह, इससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स सब आते हैं, एंड से कुलेका। अब इनका बीक्स अलग अलग प्रकार का होगा, क्योंकि टीथ मॉडिफाई कर गया बीक्स में। अब अलग अलग प्रकार का फीडिंग हैबिट होगा और अलग अलग प्रकार का बीक होगा। आप देख सकते हैं, कोई सीड ईटिंग है तो उसमें अलग है, कोई फिश ईटिंग है तो अलग है, कोई इंसेक्ट ईटिंग है तो अलग है, कोई फ्रूट ईटिंग है तो अलग है। इस तरह से आप देख सकते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब आसान हो जाएगी चीज़ें, जो कठिन चीज बात थी उसको मैंने पहले ही कह दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देख लीजिए कि इनके पास लंग्स उतने अच्छे यहाँ पर हमारी तरह नहीं है, इनएलास्टिक हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए यही काम करते हैं, यही मेन है। गैसियस एक्सचेंज मतलब मेनली लंग्स से ही होता है सब कुछ, गैसियस एक्सचेंज, इसलिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। लेकिन सपोर्ट है इनके पास एयर सैक्स का। ये एयर सैक्स 6 से लेके आगे की संख्या में रहते हैं, कुछ 9 तक 12 तक, जो भी सपोर्टिंग इन नेचर है। कूलिंग के लिए है, डबल रेस्पिरेशन के लिए है, इस तरह से सपोर्ट में है। तो मेन जो है वो लंग्स हैं, उनके अंदर अल्वियोली हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, और एयर सैक्स उनके लिए सपोर्टिंग का काम करते हैं। अब इनके लंग्स के पास पहले ट्रैकिया के बेस पर, ट्रैकिया का जो बेस है, उस ट्रैकिया के बेस पर आप देखेंगे कि यहां पर सायरिंग्स है। अब सायरिंग्स जो हैं ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जिससे अलग अलग प्रकार के आवाज निकालते हैं। तो इसमें इमिटेशन प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा बर्ड्स में इमिटेशन प्रॉपर्टी होती है, वो इमिटेट करते हैं आपकी बात को, जैसे आप बोलेंगे उसे इमिटेट कर सकते हैं। तो ट्रैकिया के बेस पर सायरिंग्स होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जैसे हमारे में लैरिंग्स होते हैं, और इसमें इमिटेशन प्रॉपर्टी बहुत होती है, ये नकल करने में तेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आती है बात सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बता दें क्लोज टाइप सर्कुलेशन है, और इसमें हार्ट जो होते हैं वो 4 चैम्बर्ड होंगे, और आपको बता दें इसमें 2 ऑरिकल होंगे, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ये पक्की बात रही। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि इसमें हार्ट जो 4 चैम्बर्ड हैं, इसमें सिस्टेमिक आर्क जो है यहाँ पर, इसमें जैसे अभी रेप्टिलिया में बताया था कि पेयर्ड होते हैं, इसमें खाली कौन से वाले काम करते हैं ज्यादातर, ये याद रखना पड़ेगा, राइट वाले कि लेफ्ट वाले। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये राइट सिस्टेमिक आर्क जो है यही काम कर पाते हैं, मैमल्स में लेफ्ट वाले काम करते हैं, और रेप्टाइल्स में दोनों मिल जाते हैं एक खास जगह पर, जिसको कहते हैं फोरामेन ऑफ पेनिजी। तो राइट सिस्टेमिक आर्क जो है ये फंक्शनल है इनका, लेफ्ट वाला नहीं है फंक्शनल, लेफ्ट वाला हमारे में मैमल्स में। और इनके पास आरबीसीज काफी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं रिचेस्ट ब्लड। रिचेस्ट इनके पास काफी ज्यादा होते हैं, मतलब मैक्सिमम होते हैं पर क्यूबिक एमएम में, पर क्यूबिक एमएम में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं आरबीसीज सर्कुलेटरी सिस्टम में। और इनके पास रेसिडुअल, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेसिडुअल एयर नहीं होता, ये फटाफट इनको एनर्जी चाहिए, बस इनके आरबीसी के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलते हैं और ये फटाफट तेजी से एनर्जी चाहिए इनको। तो आरबीसी काफी ज्यादा संख्या में होते हैं यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अब रही बात, अब बात करेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख लीजिए इनके किडनीज जो होते हैं वो मेटानेफ्रिक होते हैं, किडनीज मेटानेफ्रिक है, मतलब सबसे एडवांस टाइप का किडनी है यहाँ पर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो नहीं होता इसमें, ताकि बॉडी हल्का रहे, पूरी कोशिश करते हैं ये कि बॉडी कैसे हल्का रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। और नेचर यदि देखा जाए इनका एक्सक्रीशन का, तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ वाटर करते हैं, बॉडी को हल्का रखते हैं, यूरिक को डिपॉजिट नहीं होने देते। अब उसके बाद यहां पर देखना पड़ता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डाइसियस भी कह सकते हैं, यानी 2 डिफरेंट सेक्स 2 डिफरेंट बॉडीज में होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। अब इनके एग्स जो होते हैं वो
अलग अलग शेप एंड साइज वाले होते हैं। तो एग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा योकी होते हैं, योकी होते हैं। इसमें योक मतलब रिजर्व फॉर मटेरियल। तो मेगालेसिथल होते हैं एग्स, और क्लेडोइक होते हैं। मेगालेसिथल मतलब योग की मात्रा रहती है, लेसिथल THAL, योकी होते हैं। योग मतलब रिजर्व फॉर मटेरियल। एंड क्लेडोइक भी होते हैं, शेड होते हैं। क्लेडोइक मतलब शेड। अब इनके फीमेल्स की बात करते हैं। मेल्स अटैकिंग होते हैं, फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल्स के पास इनका जो राइट वाला ओवरी होता है और ओविडक्ट, राइट ओवरी और ओविडक्ट, ये जो होता है धीरे धीरे डिजेनरेट करता जाता है। तो लेफ्ट वाला इनका फंक्शनल हो जाता है। तो लेफ्ट वाला ज़्यादा काम करता है, या वही काम करता है, ऐसे समझ लीजिए। और इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्योंकि ये जान लीजिए कि इनका हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल है। ये ज़मीन पर रहने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ये जो आप एडेप्टेशन देख रहे हैं, वोलेंट या फ्लाइट या एरियल एडेप्टेशन, ये इनका एडेप्टेशन है। कितना भी उड़ ले, धरती पर आना है। तो हैबिटेट आपसे कोई पूछे तो टेरेस्ट्रियल है, और वोलेंट और फ्लाइट और एरियल एडेप्टेशन है, जिसमें हम वो मसल्स की बात कर रहे थे कि हॉलो बोन्स है और फ्लाइट मसल्स हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और इसी से जुड़ी हुई बात हम और करेंगे, लेकिन बहरहाल ये टाइम है कि हम इसके बारे में बता दें कि डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा नहीं होता। अब इन सब से जुड़ी हुई बात आती है कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें हम बात करें नर्वस सिस्टम की और सेंसरी सिस्टम की। अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। इनमें वही क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं, जो जानकारी की बात है वो बता रहे हैं आपको। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो रिड्यूस्ड है, मतलब इनमें स्मेल पावर नहीं होते, एकदम ना के बराबर। स्मेलिंग पावर इनकी बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा डॉग में, सबसे कम इनमें। और इनके पास वही आई की बात करें तो टेलीस्कोपिक विजन है, बहुत दूर दूर तक देखते हैं। स्मेल पावर भले कम हो, आईज बहुत शार्प होते हैं। टेलीस्कोपिक विजन है, और इसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होते हैं, मतलब थर्ड आईलिड भी होते हैं। 2 आईलिड तो होते ही, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो टेलीस्कोपिक विजन है, दूर दूर तक देख लेते हैं। और ईयर में देखिए, ईयर में आपको बता दें वही कि कोलोमेला ऑरिस रहेंगे, वही ईयर ऑसिकल, और बाकी इंटरनल ईयर तो रहेंगे ही। तो ये आपको समझना चाहिए। और वही काम इनका जो पहले से रहा है, स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन। तो कोलोमेला ऑरिस प्रेजेंट है, और ये स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन है। इंटरनल ईयर तो है ही, इंटरनल ईयर प्रेजेंट है। मिडिल ईयर में कोलोमेला ऑरिस है। अब देख लीजिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक बात और भी आती है, वो है इसी से जुड़ी हुई बात यहीं पर कि इनका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम कैसा है। तो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम में आपको बता दें कि ये यहाँ से आप